السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر وفاقی کابینہ متفق۔ حتمی فیصلہ آج وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں ہوگا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ حکومت کا 10 مئی سے 15 ٹرینز چلانے پر غور۔ ٹکٹس کی 50% بکنگ آن لائن ہوگی۔ پنجاب حکومت کا 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ۔ 15 رمضان سے 6 گھنٹے کے لیے کپڑے کی دکانیں بھی کھولنے کی اجازت دینے پر غور۔ خیبر پختونخوا میں آج بھی رمضان کے دوران ضروری کاروبار کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ SOP سے متعلق تاجر برادری سے مشاورت جاری ہے۔ سندھ اور وفاق میں لاک ڈاؤن پر نقطۂ نظر کا اختلاف ہے۔ کورونا ویکسین کی تیاری میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ ہمیں زمینی حقائق دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ صدر عارف الوی کی پروگرام ٹنائٹ وتھ فریحہ میں گفتگو۔ کہا کہ 18ویں ترمیم میں جمہوری انداز سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نون لیگ بھی اس حکم کو تسلیم کرتی ہے۔ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 22,049 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 28 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 514 تک جا پہنچی۔ پمس اسپتال کی ایک اور ڈاکٹر کورونا میں مبتلا۔ ملک بھر میں 274 ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 519 ارکان کورونا سے متاثر ہو چکے۔ کورونا وائرس نے سندھ پولیس کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کے خاندان کے 19 افراد کورونا میں مبتلا۔ ایک ہی خاندان کے 8 افراد میں بھی وائرس کی تصدیق۔ 153 میں سے 87 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار۔ پیپلز پارٹی کورونا کے خلاف تعاون نہیں کر سکتی تو روڑے بھی نہ اٹکائے۔ 6 صوبائی وزیر کام کرنے کے بجائے پریس کانفرنسز میں لگ گئے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز پھٹ پڑے۔ بولے کہ شریف برادران خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ نواز شریف لندن کے اربوں روپے کے فلیٹ سے نکلیں اور پاکستان آئے۔ کراچی میں کورونا سے جاں بحق ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہ ملنے کا معاملہ۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ کل تک مل جائے گی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچیہو بولی کہ مریض بالکل آخری لمحات میں ہسپتال لائے جا رہے ہیں۔ اب بھی مریضوں سے زیادہ وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ وفاقی کابینہ نے قومی اقلیتی کمیشن کی منظوری دے دی۔ کمیشن میں کوئی قادیانی ممبر نہیں۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا چیلارام کیولائی کو کمیشن کا سربراہ بنانے کا اعلان۔ سکھ برادری سے 2، کیلاش پارسی برادری سے 1 ممبر ہوگا۔ ہندو مسیحی برادری سے 3 ممبر شامل کیے گئے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی ملاقات۔ کورونا متاثرین کو راشن اور مالی امداد سمیت امور پر بات چیت۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عمران خان نے وقت کے فرعونوں اور نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستانیوں کو حق و باطل کی لڑائی کے لیے منظم کیا۔ خبردار، احساس پروگرام کے نام پر جعل ساز سرگرم۔ لیگی رہنما احسن اقبال کو بھی 12,000 روپے وصول کرنے کا میسج آ گیا۔ لیگی رہنما نے میسج سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ لکھا، اندازہ کریں کیسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں یا احساس امداد کے نام پر فراڈ ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیری 9 ماہ سے غیر انسانی لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے میں ہے۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں شدت بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔
भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 195 अफराद हलाक, 3,900 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक अमवात की मजमूई तादाद 1,500 से जायद हो गई। रियासत महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर, 1,500 नए केसेस सामने आए। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1,300 से ज्यादा अफराद हलाक, अमवात 71,000 से जायद हो गई। 12,25,000 अफराद मुतासर। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हलाकत बरतानिया में रिपोर्ट। अब तक 29,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,56,000 से भी जायद हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग घर बैठकर जीती जा सकती है। कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन के हवाले से फैसले आज होंगे। अपोजिशन कोरोना सूरत हाल में ये तासुर ना दे कि उसे आवाम नहीं इक़्तिदार से दिलचस्पी है। एक सूबे तक महदूद होने वाली पीपल्स पार्टी सिर्फ लाड़काना तक महदूद हो सकती है। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क लूटा। नवाज शरीफ लंदन में अरबों मालियत के घर में आराम से रह रहे हैं। आवाम ने फैसला कर लिया है कि उन्हें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी बहजाद सलीमी की रिपोर्ट। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के बारे में वजीर आज़म इमरान खान के मौकिफ का दिफा। कहते हैं वजीर आज़म सबको एतमाद में लेकर फैसले करते हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक कल अहम इजलास होगा जिसमें तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। इस इजलास में कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन के हवाले से फैसले होंगे। उस तबके को जो कि मजदूर, दिहाड़ीदार और जो माशी तौर पे एक वल्नरेबल सिचुएशन में है, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए और किस तरह से इन जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। वजीर इत्तलात ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तनकीद मुस्तरद करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। बोले मरियम औरंगजेब के गुस्से से लगता था जैसे किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली गई। नून लीग की कयादत खुद को कानून से बालातर समझती है। सईद गनी से सवाल किया कि वो बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ एक सूबे तक क्यों महदूद रह गई है। उनसे जो भी सवालात पूछे गए हैं तो वो बहुत ही आसान और बड़े सिंपल थे, लेकिन अगर ऐसा था तो वो इतने गुस्से में क्यों थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल चीज़ थी जो कि हमें देखना है पाकिस्तानी अवाम ने, कि आप देखें कि इससे ये जाहिर होता है कि अगर उन्हें नैब ने बुलाया है तो वो एक कानून का एक इदारा है। अगर आप कानून के सामने अपने सामने पेश होने को अपनी हित तक अपनी बेइज्जती समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई पास तो है ही नहीं, और वो हमें पता था कि उनको कोई कानून का पास नहीं है। शिबली फराज ने बताया कि काबीना ने कौमी कमीशन बराए अक़लियत की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी है। ताहम कादियानियों का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर बोले काबीना में से किसी ने इनको अक़लियती कमीशन का रुकन बनाने को सपोर्ट नहीं किया। अमली तौर पे मैंने यही देखा कि इस मामले में कोई भी हमारी कैबिनेट का कोई ऐसा मेंबर नहीं था जो कि जिस तरफ आपका इशारा है इसके मामले में उन्होंने उसको सपोर्ट किया हो। वजीर इत्तलात का कहना था काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है, जबकि मुल्क में तैयार शुदा सैनिटाइजर्स की बरामदात की मंजूरी दे दी गई। कैमरामैन आकिब राना के साथ बहजाद सलीमी, इस्लामाबाद। अब तक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ओमान के वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ बिन अलवी से टेलीफोनिक राबिता किया है और कोरोना आलमी वबाई सूरत हाल और इससे नबर्द आज़मा होने के लिए मुश्तरका काविशें बरूए कार लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया है। राजदा सियाल हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा राजदा, और क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ओमान के वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ बिन अलवी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि कोरोना आलमी वबाई सूरत हाल और उससे निबर्द आज़मा होने के लिए मुश्तरका काविशें बरूए कार लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा ने ओमान हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए बर वक्त इक़दामात की तारीफ की है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने अमानी हम मनसब को कोरोना आलमी वबाई
चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली काविशों से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने अमान में मुकीम वतन वापसी के मुंतजिर पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी में मावनत फराहम करने पर अमानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मौजूदा वबाई तनाज़ुर में तरक्की पजीर ममालिक को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के मुज़मरात से निपटने और कमजोर मईशतों को सहारा देने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के लिए ग्लोबल डेब्ट रिलीफ का मुतालबा किया है ताकि ये ममालिक अपने वसाइल को कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए इस्तेमाल में ला सकें। शाह महमूद कुरैशी ने मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में टिड्डी दल के हमले के खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें बरूएकार लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल भारतीय कर्फ्यू के बाइस 80 लाख कश्मीरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। भारत जिस तरह मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार गर्दान रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। दोनों वज़राए ख़ारजा का कोरोना वबा से निपटने और अहम इलाकाई उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के हवाले से मुशावरती सिलसिला जारी रखने का इत्तफाक भी हुआ है। जी ठीक है राजदा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जेफरी शॉ ने कहा है कि मुझे इल्म है कि बहुत से ऑस्ट्रेलवी अब भी घर वापसी को बेताब हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से हम ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और परवाज का इंतजाम करने में कामयाब हो गए हैं। ये एक नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल परवाज है जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। PIA इस परवाज को ऑपरेट करेगी। ये 10 मई को कराची से उड़ान भरेगी और 11 मई को सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। Australian High Commissioner to Pakistan. I know many Australians are still keen to get home. I'm pleased to advise that, working with the government of Pakistan, we've been able to arrange another commercial non-scheduled flight to Australia. The flight will be operated by PIA. It will depart Karachi on 10 May and arrive in Sydney on 11 May. To book seats, you can purchase tickets directly from the PIA sales offices. To book, you need to have a valid Australian passport, be an Australian permanent resident, or be an immediate family member with a valid visa. Seat sales must close 72 hours prior to departure, so please book as soon as possible. Please contact PIA directly if you have questions about the flights, and of course my contract team is ready to answer any other questions you may have. Upon arrival, all travellers will need to complete a mandatory quarantine period of 14 days at a designated facility in Sydney. Please ensure you have plans in place for accommodation following the quarantine period and consider how best to be prepared from a mental health, social well-being and financial perspective.